Hello and welcome to another podcast with Fark Parta Hai. Together with collaboration of UNODC and NACTA, we are presenting a series of podcasts to you where we talk about peace building, especially in the context of Pakistan. So today I have a very special guest with me, and I feel like the one daunting task that I had was summarizing all of her accomplishments in a few lines. But I will try my best to summarize them in the limited time that we have. So today, we have the privilege of welcoming an extraordinary guest to our podcast, Dr. Faryal, a distinguished and accomplished trainer, research consultant, and an impressive portfolio of experience at both national and international platforms. She has contributed to prestigious organizations including the British Council, US Embassy, and the SARC Women Portal. And she has played an instrumental role mentoring different organizations, including the National Incubation Center, Accountability Lab, and the Khudi Women Empowerment Project. Dr. Fayal is not just a mentor, she is a thought leader in the startup ecosystem, actively engaged in training, judging, and coaching emerging entrepreneurs. As a researcher, her work is even more impressive as she has pioneered Pakistan's first model of emotional intelligence in the workplace, securing 5 copyrights for her groundbreaking work. She sits on the editorial boards of 7 research journals and has over 20 research publications to her name. Her expertise extends beyond academia. She's a regular expert panelist, a columnist for leading newspapers, and the CEO of a unique company dedicated to providing emotional preventive care. Dr. Fairal's insights on emotional intelligence, leadership, peace building, and women empowerment are invaluable. So, help me welcome Dr. Fairal to the podcast today. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Thank you so much for such a, ravishing, introduction, and I'm very pleased to be here. Thank you so much for having me. Thank you so much for being here. So, today, the topic that we're discussing is one that is very close to both of our hearts. We're discussing women in peace building. Now, this is an unconventional topic, I would say, because whenever we talk about peace building, we think of government interventions, we're thinking of military interventions. But how many times, and this is a question to the audience that's watching us as well, how many times do we think about women when we think about peace building? And now, still thinking about the same idea, I want you to reflect on कितनी दफा ऐसा होता है कि जब violence or like any sort of like radicalization, उनके सबसे पहले victims कौन लोग होते हैं, कौन से segment of society होता है. So with this thought-provoking discussion, we aim to shed light on the crucial role of women in CVE. So my first question to you, या फिर जो discussion हम करना चाह रहे हैं वो ये होगी कि जब हम बात करें कि women should be involved in peace building activities, what are some barriers जो आपने अपने काम में identify किए हैं working with students and academia कि ऐसे कौन से challenges हैं जो women जब वो peace building में act करना चाहती हैं act तो उनको क्या barriers face करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वुमेन का पीस बिल्डिंग में होना जरूरी क्यों है. देखिए, वुमेन कंप्राइज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन. And let's come to the research. When women are involved in peace building, so it is more likely, 35% times, it is more likely that the agreement will last 15 years. On top of that, if you increase just 5% the population of women in the parliament, it is 5 times less likely that any international violations will be done by the, the country as well. Having said that, I'm telling you the international statistics. Only 2% of the mediators in peace talks are women. Only 2%. And when we have negotiation talks for peace building, then we have 9% women in the international scenario. Alarming statistics. This is alarming, beyond alarming. But when it comes to Pakistan, it's even more appalling. अगर आप देखें कि इस वक्त हम जेंडर पैरिटी में कहाँ खड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान इज द सेकंड मोस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट रेट इन जेंडर पैरिटी. 141 नंबर पे है. अब ये देखिए, ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं, व्हाट डज इट टेल यू? अब रिसर्च कहती है कि जब वुमेन आर इन्वॉल्वड इनटू पीस बिल्डिंग, इनटू डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट, व्हाट हैपेंस? अगर आप अपनी 141 स्टेटिस्टिक्स देखें तो लेट मी शेयर कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक उसमें 141 पे खड़ा है, एजुकेशन पे 132 पे खड़ा है, और हेल्थ में 119 पे खड़ा है, और 85 रैंक पे खड़ा है इन पॉलिटिकल. तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. द रोल ऑफ वुमेन नॉट ओनली इन पीस बिल्डिंग, if you don't allow them to be in these processes,
So you see a decline, and research suggests that when more women are in the parliament, when more women are in the power corridors and decision making, countries prosper. Exactly. Countries prosper. So I would say that it is not a choice. It's Hmm. not an option anymore. We need to be doing something actively. Actively, we need to be doing something to Hmm. involve more women in the peace building, because बिल्कुल. the definition and how it hits, women, the terrorism, and agar aap men or aap research क्या कहती है, Hmm. women does not see violence or extremism as just Taliban or inter-country violence. Hmm. They see the violence as what is happening at the homes as well. बिल्कुल. पाकिस्तान का अगर आप रेट देखें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और अभी ये रिपोर्टेड नहीं है, इट्स फ्रॉम 21 to 50%. So women are basically the recipient of the violence when they have so much potential. Yeah. But our patriarchal society always keep them at bay. एग्जैक्टली. लाइक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जितना पॉलिसी मेकिंग में हमारी परसेंटेज लो है वुमेन की, उतने ही हम वुमेन इंडिकेटर्स में लो रैंक करें. ये एक बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है, क्लियर कनेक्शन है Absolutely. जिस पे हम अभी एड्रेस नहीं कर रहे जितना करना चाहिए. और women are at the center of the violence. They are at the receiving end as well. But they are also agents of change. They are also resilient. So, in your career working with all of these women in education, do you have any inspiring stories to share with us? या कोई instances जहाँ पे women का role, especially in the sector of education, कि किस तरह वो combat कर सकती हैं इन सारी चीज़ों के साथ? सबसे इम्पोर्टेंट, लेट मी शेयर द रिसर्च. आई एम अ रिसर्चर एंड लेट मी शेयर द रिसर्च फर्स्ट. बिल्कुल. ये चीज हमेशा वो उतना हाईलाइट नहीं होती कि व्हेन देयर इट इज फाइटिंग टेररिज्म, women are always at the forefront, especially religious extremism. They tell them कि no, this is wrong, this is not in Islam, you know. बिल्कुल. So they are the one speaking out in the first place. And men जो हैं, क्योंकि violence को देखते हैं armed conflict के हिसाब से, तो women जो है उनका रोल हमेशा बड़ा क्या कहना चाहिए, मार्जिनलाइज कर दिया गया, या फिर उनको हाईलाइट भी नहीं किया गया. I've seen a lot of who are actually actively working. Even I was part of that community resilience research network by SDPI and Creative Learning USA. और हमारे पूरे पाकिस्तान के चैप्टर्स थे. And I doubt that hardly maybe 15% were women researchers, including me. And then वही बात आ जाती है कि those who made it, they had significant contributions there. क्योंकि वही Exactly. बात है कि रिसर्च फंडिंग की भी तो बात आ गई ना. आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात आ गई. आप उनको एजुकेशन से पीछे रख रहे हैं, एंड येट दे आर सो resilient and so ahead of their time that they're the one who are speaking against the violence. They're bringing different perspectives, things that other Different. people aren't thinking of, and still they're Yeah. being marginalized. So that is very true. I completely agree कि जितना ज्यादा crucial role है उतना ही marginalized है ये community. What do you think is like the role, अगर हम बात करें as educators, like how can they influence the community? देखिए, I did this research for faculty की tendency for extremism and violence, and the results were staggering. It was a funded research, and जो बहुत some of my colleagues who were very fanatically religiously extremist, they refused to give me the data. They were not included in Really? the data set, and they said कि आप तो US agenda पे काम कर रही हैं, आप तो agent हैं, because I was talking about religious views, extremism. आपके ख्याल में क्या है? And can you imagine what my research suggests? And it was in a book chapter that was launched in President House by the SDPI. And it was that 69.6% of the faculty had violent views. And then 33.3% had extremist tendencies. 1/3 of the faculty. और अभी मैंने आपको बताया कि शायद these would have been, the number would have been greater. Yeah, good And data. 82.6% had higher risk taking and impulsive behavior. So when I asked them कि आपने कभी किसी extremist को देखा, they said 50% said yes, we have met some person. I said, how do they look like? They said they look like you and me. And you only get to know when there is a difference of opinion. Exactly. उनके सेक्ट के हिसाब से, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से, आप उनकी मतलब रिलीजियस या पॉलिटिकल या उनकी
बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करें तो फिर आपको उनका एक्सट्रीमिस्ट नेचर नजर आता है, अदरवाइज दे लुक लाइक यू एंड मी। एग्जैक्टली। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज विच आर द जिन्होंने हमारे फ्यूचर जनरेशन को शेप करना है, हम्म। टीचर्स आर द रोल मॉडल। अगर बिल्कुल। आपने वहीं एक्सट्रीमिस्ट बिठाए हुए हैं ऐसा ही। और वहां पे एक छोटा बच्चा जो 18-19 साल में आपके हाथ चढ़ गया, आप उसको रेडिकलाइज नहीं करेंगे। द रिसर्च इन द वर्ल्ड इज अस्टाउंडिंग। हम्म। Most of the terrorists, like more than 50%, were very educated people. Same is the statistic for Pakistan. हम कहते हैं मदरसों में हो रही है या टेरर, a lot of young people, because ये चीज, और मेरी पॉलिसी रिकमेंडेशन भी थी कि हम इनको स्क्रीन क्यों नहीं करते इनके वायलेंट आइडिएशन पे। एग्जैक्टली, इट्स या वेरी कंसर्निंग। लाइक इस रिसर्च ने वो सारी हमारी बायसेस डीबंक कर दी हैं कि शायद एक्सट्रीमिस्ट हमें दिखेगा तो वो एक सर्टन उसकी गेटअप होगा या कुछ, पर इट्स सो ट्रिकी। इंडियन फिल्मों की तरह वो उसने वो पहनी भी होगी तालिबान, और मूछें होंगी और गन पकड़ के चल रहा होगा एग्जैक्टली। फैशन। यू एंड पीपल आर लाइक यू एंड मी। एग्जैक्टली। तो अगर हम पीस बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज ही ये कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या कौन एजेंट्स हैं जो ये सब जो है प्रमोट करें हमारी यूथ के अंदर इसको, बजाय इसके कि टीचर्स वुड बी द वन हु वुड बी द बेयरर्स ऑफ चेंज, जो कहें कि नहीं भाई दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। दिस इज वेरी अस्टाउंडिंग एंड दिस रिसर्च इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड लव फॉर यू टू शेयर द लिंक्स टू देम एज वेल, ताकि वी कैन प्रोवाइड अदर पीपल हु वुड वांट टू गिव इट अ रीड। उसके बिल्कुल। अलावा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की वुमेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज, और उसमें सबसे ज्यादा क्रूशल रोल जो हम सोच सकते हैं व्हेन वी रिफ्लेक्ट इज ऑफ मदर्स। मदर्स इज द पीपल जिनसे obviously like teachers or academia have a significant role, but it all starts at home, and mothers would be the first person who could even identify the early warning signs. So I would love for you to comment on the role of mothers as like peace builders in our community. देखिए एब्सोल्युटली, देखिए कहते हैं ना, माँ की गोद से कब्र तक आपको मिलता है। द रिसर्च ऑन एथिक्स या आपकी वैल्यूज में वो कहते हैं कि 60% ऑफ द वैल्यूज आप अपने घर से लेते हैं। हम्म। आपकी मदर जो है इज अ प्रोपोनेंट ऑफ पेट्रियार्की और मिसोजिनिस्ट थॉट्स, हम्म। हम पुश फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, जो ब्रीडिंग नर्सरी स्टेज में होता है। तो जो बिल्कुल। बच्चा मेंटली अनस्टेबल होता है, हम्म। जिसको घर में उसके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें प्यार, इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिली होती, और वो किसने प्रोवाइड करनी थी? मदर ने करनी थी। जब मदर इमोशनली सिक्योर नहीं है, हम्म। मेंटली स्टेबल नहीं है, when she is a victim and she has no say in हम्म। the house, उसने क्या तरबियत करनी है? ऐसा ही है। बिल्कुल। उसने क्या तरबियत करनी है? 8-10 साल का बच्चा भी आपको आपका मुहाफिज बन के आपके साथ बाजार जा रहा है, ऐसा व्हाट ही। मैसेज यू आर गिविंग गिविंग इट? तो खवातीन को एम्पावर करना, वही बात है, ना सिर्फ असेंबलीज में बट घर के अंदर। एक देयर वाज अ वेरी गुड रिसर्च, और उसमें उन्होंने कहा था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आर यू नो स्पेंट ऑन क्राइम फाइटिंग। हम्म। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी ना करें, यू जस्ट स्ट्रेंथन द फैमिली दैट दे कैन गो होम एंड लव देयर चिल्ड्रन मोर, यू कैन ऑल टुगेदर। सारी क्राइम फाइटिंग से बेहतर है कि वो पैसे आप घरों में दे दें कि उनको एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, उस तरह हो। तो हम्म। बात यह है कि मदर्स जो हैं उनका रोल इसलिए है क्योंकि वो खुद बड़ी मेंटली चैलेंजेस हैं उनके। दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, इट टेक अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एग्जैक्टली। तो उसकी एनवायरमेंट, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसका सारा कुछ, तो ऑल दिस थिंग्स मैटर। हम्म। और वो कहाँ से आई? इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है। क्योंकि उसको पता है कि वो उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वो भूखी मर जाएगी, शी विल नॉट बी अलाउड टू वर्क। उस जो कुछ भी है वो अपने मियाँ के रहमो करम पर है। और ऐसा एक ही। छोटी सी मिसाल मैं आपको करूंगी, समबडी आस्क्ड मी व्हाट आई मेड। तो मेरा एक ड्राइवर था, तो उसको मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी क्या करती? कहता फारिग है, घर में कुछ नहीं करती। तो हम्म। मैंने कहा उससे कहो काम क्यों नहीं करती? तो मुझे आगे से बड़ा गुस्से से कहता है कि हमारी औरतें काम नहीं करती, हम बेगैरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी गैरत ये गवारा करती है कि तुम एक औरत से तनख्वाह ले रहे हो? नहीं हम्म। नहीं बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये क्या? मैंने कहा बड़ी तुम्हारी सिलेक्टिव गैरत है भाई। तुम औरत से तनख्वाह तो ले सकते हो, मेरे ड्राइवर हो, मगर मुझे तुम सुना रहे हो कि हम बेगैरत नहीं है, कि हमारी औरतें काम नहीं करती। कितना या। प्रिवेल करता है। उसकी बीवी को देखें, हाउ मच एम्पावर्ड शी वुड बी। उसकी हम्म। क्या राय होगी जब एक मेंटली अनस्टेबल खातून, क्या किस किस्म के मेंटली अनस्टेबल बच्चे ही परवान चढ़ाएगी ना। ऐसा ही है। बिल्कुल।
आप उनसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपने उनको वो फ्रीडम दी नहीं, आपने उनको वो रिसोर्सेज दिए ही नहीं कि वो अपने आप को इक्विप कर सकते हैं उन स्किल्स और रिसोर्सेज के साथ, जिससे वो अपने बच्चों को, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग कर सकें। और जो एक बात आपने की जो मेरे साथ बहुत स्टिक किया, आई थिंक कि जो हमें लोग व्यूअर्स होंगे उनके साथ भी स्टिक करेगी, कि आजकल एक ये रील भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो एक फनी ऑन अ लाइटर नोट जैसे कि अच्छा तुम बाहर जा रही हो तो अपने घर के मर्द को साथ लेकर जाओ, और वो द कैमरा पैन्स और घर का मर्द कोई 2 साल का बच्चा होगा जो गाड़ी में बैठा होगा, बट देर लाइक ये तुम्हारा फॉर योर सिक्योरिटी। दादी। सो व्हाट मैसेज आर वी सेंडिंग टू यंग गर्ल्स के लाइक वो पीस बिल्डिंग एफर्ट्स में क्या पार्टिसिपेट करेंगे? आप उनको खुद इतना आपने उनको डरा दिया है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं दी, क्या वो अपने स्किल्स और अपने पर्सपेक्टिव्स को आगे ला सकें? इसी डिस्कशन को आगे लेके चलें कि जेंडर रोल्स का क्या रोल है औरतों को पीछे रखने में इन एफर्ट्स पे। बात दरअसल ये है कि जेंडर पैरिटी से जहाँ से हमने बात की और जहाँ से हमने शुरू किया, कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज हैं, हम्म। यूएन के बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट लेवल में, देयर आर लॉज एंड बहुत कुछ है जो जेंडर हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस उसको करते हैं। बट देन अगेन, हाउ मेनी केसेस आर रिपोर्टेड? एग्जैक्टली, सब तो जो पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं, वो हम्म। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लॉज दे के इन्फोर्स कर सकती है। मगर या। हमारी इतना सिस्टमैटिकली करप्शन है हर जगह पे, क्योंकि वही पेट्रियार्कल बंदे बैठे हुए हैं ना। अगर एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करती है, तो वहां का जो पुलिस ऑफिसर है, जो एसएचओ बैठा हुआ है, और वो किसी बहुत बैकवर्ड इलाके से है, तो वो तो उसको बिल्कुल डिस्करेज करेगा, मियाँ तो मार ही देते हैं, हम्म। यू नो। सो या। उसकी बात किसने सुननी है? वो उसको डिस्करेज ही करेगा। तो उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट बेस्ड जो हमारे इश्यूज हैं वो इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल नॉर्म जो कि हमारा इतना इनग्रेन्ड हो चुका है। और इसकी वजह सिर्फ वही वाली बात है कि एजुकेशन, ऐसे। कि खवातीन को राइट नहीं है एजुकेशन का, खवातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। आप इसको रो रहे हैं। आई जस्ट डिड दिस रिसर्च फॉर ब्रिटिश काउंसिल ऑल्सो, उनकी बेसलाइन स्टडीज थी, और उसके बाद मेरा अपना खुद का पेपर भी है कि वुमेन का स्टेटस इन हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन इज अ फील्ड जहाँ पे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड वेरी गुड, मगर व्हाट इट टेक्स टू बी एट द टॉप। तो मैंने वीसीज और जो डीन लेवल खवातीन थे उनके इंटरव्यूज किए, एंड वुड यू बिलीव, मोस्ट ऑफ देम वर अनमैरिड और डिवोर्स्ड। दिस इज द प्राइस टू गो अप द रैंक, बिकॉज या। आपके बच्चे हैं, छोटे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर या इस लेवल पे हो सकते हैं, बट टू गो टू द डीन एंड द वीसी लेवल, इवन हमारी एकेडेमिया में इतना वाइस एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे इस 50% को, उसका राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी पार्टिसिपेशन होगी? एग्जैक्टली। अब बात यह है कि मर्द हमेशा से बचपन से ही वो डिसीजन मेकिंग में है। हम्म। बच्चा वो 5 साल का माँ को लेके जा रहा है दुकान से, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। एंड मेरे स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक बात पूछती हूँ कि चलो अब भी आपका प्रोग्राम बन जाए कि चलो आओ खाना खाने कहीं चलते हैं। मैंने कहा मुझसे शर्त लगा लें, आधा घंटा आप बहस करेंगे कि जाना किधर है। हम्म। इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग है लड़कियों की। और मेरे आपकी ज्यादा एम्पावर्ड है, एंड यू कैन रिलेट दैट विद माय फ्रेंड ग्रुप एंड योर फ्रेंड ग्रुप्स एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। लड़कों का प्रोग्राम बनता है, यार खाना खाते हैं चलो। ऐसा ही है। मैं अपने भाई को देख रही होती हूँ, वो उनके बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान्स हैं, दे कैन जस्ट डिसाइड पिक, पर ऐसा ही है, बहुत फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं एज अ गर्ल, एंड या डिसीजन मेकिंग इज उसमें कुछ है, एंड क्योंकि इट बचपन से हमने की स्टार्टिंग नहीं। समवेयर। एग्जैक्टली, वो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं। बात तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। वो जो उस बच्चे को आप 6 साल में दुकान पे भेज रहे हैं लोगों से, जैसे एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, क्योंकि मेरी बेसिक पीएचडी इज इन इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस एंड एचआर एंड ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम्म। तो मैं हमेशा बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पहली जॉब जो है ना, आप जरा पब्लिक डीलिंग में करें, चाहे रिसेप्शनिस्ट लग जाए कहीं पे, क्रीम चलाना शुरू करें, हम्म। तो यू वुड गेट टू नो जो कोई एमबीए की डिग्री आपको नहीं बताएगी। तो अब ये देखिए, वो बच्चे तो बचपन से ग्रूम्ड हैं ऐसा ही है। उस पब्लिक हैंडलिंग को, बट गर्ल्स आर नॉट, दे डोंट नो कि अगले का क्या मतलब है, क्या है नेगोशिएशंस एंड ऑल दैट। तो वो मतलब इंट्रिंसिकली वेरी अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, बिकॉज वी आर डूइंग नथिंग फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। इतना ग्रास रूट लेवल तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन और ये जो चीज पहुंच चुकी है, तो बहुत कंसर्टेड एफर्ट चाहिए हम्म। on all levels, ऐसा starting from the family system, है। challenging the family system. आई वुड रियली लाइक टू एग्री विद यू कि एजुकेशन और फैमिलीज एक
बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी टॉक के जिस तरह लाइक लड़कियों के पास वो मे बी कॉन्फिडेंस या वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी नहीं हुई जो हम बाकी सेगमेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो अब जो हमारे लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे या जो यंग गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द स्टेप्स दैट दे कैन टेक to get somewhere, yeah, to make some sort of effort towards peace building? जब ये एक्सट्रीमिज्म की रिसर्च थी, सानो इबाना, शाना, इस तरह उनको मिले, आई वॉज द ओनली वन हु प्रपोज कि हम मॉन्टेसरी लेवल पे क्यों नहीं इसको हिट कर रहे। वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, पहले 7 सालों में बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। व्हाई डोंट दे वी टेल देम कि बुलिंग इज बैड, मतलब किसी का राइट लेना, किसी को बुली करना, इमोशनल रेजिलियंस होना, वी आर नॉट डूइंग दैट। Yeah. तो एंड वी डेवलप्ड कार्टून बेस्ड वीडियो लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर दैट, कार्टून बेस्ड वीडियो लिटरेसी प्रोग्राम जहां पर हम उनको इमोशनल रेजिलियंस सिखा लेते, बुलिंग दिखाते थे और सेक्सुअल वायलेंस के बचना कैसे है आपने, हाउ टू से दैट। तो वी क्रिएटेड दिस फर्स्ट लिटरेसी, और हमने इसको पहले वैलिडेट किया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, एंड द रिजल्ट्स फॉर अस्टाउंडिंग। 96-97% हमें सक्सेस रेट इन 6 वीक्स हमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के मिले। Really? That's great. बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के। Yeah, this has been a very, very interesting discussion for me. All this data, all this research that's there for us to review and design our interventions around ke what has worked, like your animated wo. Uh, Approaches like these is what we need. So this is the kind of impact that, like you said, small sample, but the outcome of it, the results that we're getting, the findings that there are very crucial to these efforts that we're doing. Is there anything else that you would want to talk about that you want included? बिल्कुल, दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि बचपन से लेके, मतलब आप मॉन्टेसरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारे एथिक्स के कोर्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। मतलब आप देखें, एज एन अडल्ट, unless I did my PhD in emotional intelligence, I did not know how to handle my emotions. Yeah. We have never been taught as a subject कि as a इंसान, जबकि emotions are something that is with you all the time. So we try कि बच्चों को बताया जाए कि how important इखलाक is translated into character and good manners. Ethics should be इतनी बार आपको repetition हो कि it embedded into your system. Yeah, thank you so much for joining us. It has been a pleasure having your insights on all these topics, such crucial discussions. So these are the questions I will explore today. These are the conversations that we need to have, and these are the voices that need to be heard. So stay with us as we break the silence on women's role in peace building and fight for a more secure Pakistan. Thank you so much.